أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Okay, last time we have been working with the Lewis theory of acids and bases. Actually, we try for the excellent material should be provided to our students so that they can get up as early as possible. They should understand as early as possible. So let me know how you took any book from the library in this regard regarding inorganic chemistry. Let me know. Yes. 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 Have you taken any book from the library? No, sir. No, sir. No one has taken the book. You should take the book from the library. I think iCards are available with all the students. So you should go and take the book. Whatever material I have given, I have prepared. It has been prepared through. Can you tell me the name of the books from inorganic section? I have narrated in the very first lecture. Can you tell me? Yes. Some of the books, not all. Some of the books you may be definitely. Yes. Some of the book, at least one book from the inorganic chemistry side or organic chemistry side. It doesn't matter much. There is no boundary as such. Yes. Someone must have referred the book. कुछ तो किताब आपने लिए होंगी लाइब्रेरी से, कुछ पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं तो एटलीस्ट देखा होगा, कवर वगैरह देखे होंगे कुछ. Concept of chemistry book. Ah, very good. Concept of chemistry. Yes, sir. Okay. Concepts in chemistry. Okay, so whatever material I have given to you since last time, it has been referred from book is with me. It is the selected topics in inorganic chemistry by Wahid U. Malik. Selected topics in inorganic chemistry by Wahid U. Malik. Okay. And today, whatever material I have taken, it is from PL Sun. This material is what I found, that this material is quite suitable for students and it is more reliable for the students. Therefore, I have taken from that. I have gone through that Wahid Malik yesterday, today also, but I found that material is somewhat hard. Therefore,
I have taken up the material from inorganic chemistry by Wahid U. Malik. He was the former vice chancellor from University of Kashmir. Okay. So we have studied yesterday some of the introductory part from Levy's theory of acids and bases. So my aim is that talk should be a lecture, whatever class should be, it should be interactive. It should be not be a monologue. It should be a dialogue. Two-way communication should be there. Okay, if you are not getting, you should ask. Oh, you should not hesitate to ask. Okay. So can anybody tell what is Levy's acid or Levy's base first? Okay. Levy's base is the electron pair donor. Okay, very good. Who is going to answer? Sheikh Munazzah Fatima. Okay. Some students other also are there. Can anybody of them tell? Only one student is giving an answer. That's nice, but others should also interact. Shifa is there, Aman is there, Rahat, Mahidia Sheikh is there, Tahrim is there. So she has told the definition regarding what I say base. Can anybody tell regarding the acid? Yes. Lewis acid is electron acceptor. डोनर है वो शायद. अच्छा donor, base acceptor. Base is Accept. no. Electron acceptor, and acid is Acid electron. is donor. Okay, you have made at least some attempt to do that. Okay. My aim is that students should interact. Okay, they may be wrong sometimes. You may be wrong sometimes, but that doesn't matter. You should have courage to do something. I will tell you something. I will tell you a very wonderful thing. Once upon a time, before 4 to 5 days, 4 to 5 years back, annual social gathering had been held for the 12th class in our auditorium campus. There was a very young SP. He joined. He came to address that social gathering named as Suez Haq. He was very thin. Now he is very much healthy. He was additional SP for B. So what he did, he came forward, and during his lecture, he asked, can anybody tell me the spelling of impossible? So I got wondered. I got surprised when a very arrogant boy, he came out from the mob and he approached him. Very wonderful, very surprising thing. I remember his face. I know him well. मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन he came to the stage. वो स्टेज के ऊपर आ गया और गलत स्पेलिंग बोला उसने. That's a courage. ठीक है, वो उसको आता भी नहीं था, ज्यादा स्पेलिंग गलत बोला, लेकिन he has done the daring. He has that much courage. So courage is very important. So okay,
According to this Lewis theory, base is a donor of electron pair. बेस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है. किसी भी रिएक्शन के अंदर में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम कौन करता है? बेस करता है. So here this theory has been put forward by G.N. Lewis in 1923 to explain the acid base behavior. Acid base का behavior reaction explain करने के लिए उन्होंने theories propose की है. It was however elaborated, extended by him and his co-workers much later. ये सब आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं. उसको बाद में इलाबोरेट किया गया, एक्सपांड किया गया, एक्सटेंड किया गया, अच्छी तरह से समझाया गया. को-वर्कर्स उनके जो साथी थे, साथ में काम करने वाले, उन्होंने काम किया. फंडामेंटल कंसेप्ट वाज पुट फॉरवर्ड बाय जी.एन. लेविस. इस साइंटिस्ट ने फंडामेंटल कंसेप्ट जो थ्योरी थी वो दी और बाद में उसका एक्सपेंशन, उसके अंदर में एक्सटेंशन वगैरह होता रहा. ठीक है. It is probably the most widely used because of its simplicity and its wide application. Why it is widely used? Because it is simple and wide application. इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है. ठीक, अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को हम उसको. ठीक है. So according to Lewis definition, an acid is a substance that can accept an electron pair to form a covalent bond. ठीक है. And base is a substance that can furnish or donate. Base is a substance that can donate an electron pair to form covalent bond or coordinate bond, coordinate covalent bond. ठीक है. एक one thing you should remember. You remember base first. Base क्या होता है? Base is always donor of electron pair. उसके साथ ऐसी एक इलेक्ट्रॉन पेयर होती है. ठीक है, वो डोनेट करता है. ये याद रखो आप. ठीक है. एसिड को बाद में याद करो. अगर बेस आप याद रख लेंगे तो इट विल बी इजी टू रिमेंबर द एसिड. ओके. ठीक है. ये बेस है. इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है. ऑल बोरॉन कंपाउंड दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन हंग्री कंपाउंड. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन के भूखे कंपाउंड्स कहा जाते हैं. बोरॉन के जितने कंपाउंड है, वेदर इट इज BF3, BCl3 और इवन डाइबोरेन B2S6 भी जो होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. तो देखिए ये भी, ये देख रहे हैं H डबल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद दैट. ये क्या रहेगा अभी? यस, लेविस एसिड या बेस? यस, H2O Base. क्या रहेगा? बेस. वेरी गुड. इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो लेविस बेस रहेगा. ये क्या है? H2O वाटर. याद रखिए वाटर के ऊपर हमेशा 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते. ठीक है. ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Ethanol. इथेनॉल. वेरी गुड. इट इज हैविंग 2 लोन पेयर. जैसे वाटर के अंदर में ऑक्सीजन, बेसिक थिंग इज देयर ऑक्सीजन इज हैविंग 2 लोन पेयर्स. ठीक है. तो ऑक्सीजन के जितने कंपाउंड्स होंगे उसमें तकरीबन 2 ही पेयर होंगे. तो इथेनॉल है, इथेनॉल के अंदर भी 2 पेयर्स है. ठीक है. उसके बाद ये क्या है? C2H5 और C2H5. यस, दिस इज Diethanol. नो नो, डाइथर. डाइथिल ईथर. वेरी गुड. डाइथिल. O functional group for ether. I think Tawqir, he has given the answer. Welcome to you, Tawqir. Okay. यस सर. Okay. So this is diethyl. These 2 alkyl groups are ethyl groups. So diethyl ether. This is NH3. Yes. Ammonia. Ammonia. Very good. Have you smelled the ammonia? Anyone? Yes. Yes. From where? आपने उसका स्मेल लिया है? लिया है. कहाँ पर आता है स्मेल उसका? Lab, I think. लैब. ओके. लैब के अंदर स्मेल तो नहीं है, जब बॉटल के पास जाएंगे तो स्मेल आएगा. लेकिन कुछ जगह ऐसी है बाहर खड़े रहते हुए भी आप उसका स्मेल एक्सपीरियंस कर लेते हैं.
यस, रोड साइड पर, हाँ, यस यस, रोड साइड पर, रोड साइड पे, ओके। WC वाटर क्लोजेट, टॉयलेट के अंदर में जब जाते हैं तो बाहर से आपको स्मेल आती है, जो स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, यूरिन कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया, यूरिन जो होता है उसके अंदर में अमोनिया की बहुत सारी अमाउंट होती है, ठीक है। यूरिन इट कंटेन्स अमोनिया, स्ट्रॉन्ग स्मेल जो आ रही है आपको, वो स्मेल जो है वो अमोनिया की है, ठीक है। टॉयलेट्स के अंदर में, लैट्रिन के अंदर जो स्मेल आ रही है आपको, स्ट्रॉन्ग स्मेल जो आ रही है, दैट इज नथिंग बट अमोनिया, ठीक है। तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये लोन, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास, ठीक। तो ये सब क्या हो गए, लेविस बेस, ठीक है। ऑल दीज आर लेविस बेस। तो ठीक है, नाउ कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। बेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है, और एसिड क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। दो लफ्जों के अंदर डेफिनेशन बन जाती है अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। बेस इज ए डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड एसिड इज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक। नो, अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, का कहना न्यूट्रलाइजेशन क्या है। According to this, neutralization is a process in which lone pair is transferred from Lewis base to Lewis acid, ठीक है। Lewis base से Lewis acid की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होती है and there is formation of a coordinate bond. Coordinate bond means, yes, a bond between electron deficient to electron rich. हाँ, ओके। उसमें खासियत क्या होती है कि एक ही, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन ये यहाँ पर बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, भूखा इलेक्ट्रॉन का, सेक्सटेट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट जो कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड हियर, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो टू इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, दे आर डोनेटेड बाय 1 एटम ओनली और 1 मॉलिक्यूल, ओके। वो कौन सा मॉलिक्यूल, NH3, ठीक है। इसलिए आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर डोनर गेट्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, निगेटिव चार्ज उसके पास से कम हो जाता है। ये डायरेक्शन के अंदर में एरो बताती है, यहाँ पर एरो ने बताया, मींस इलेक्ट्रॉन पेयर इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम नाइट्रोजन टू बोरॉन, ठीक। इसलिए बोरॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज भी देते हैं, ठीक है। ये BF3 के ऊपर निगेटिव चार्ज देते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, transfer of the Electrons from base to acid. base to acid and there is formation of a coordinate bond, एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया और उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक। in other words, an acid is an electron pair acceptor and base is an electron pair donor, okay. So a proton is an acid, प्रोटॉन यानी H प्लस, हमारी जबान की, अब यहाँ पर क्या होगा, H प्लस इज, H प्लस ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। ए प्रोटॉन इज एन एसिड बिकॉज इट नीड्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट इट्स शेल, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मींस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो वो क्या हो गया, लेविस थ्योरी के हिसाब से, लेविस कंसेप्ट के हिसाब क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, H प्लस लेकर विच 3-4 एग्जांपल दिए जा सकते हैं, उसके अंदर में से पूछा सकते हैं विच इज द लेविस एसिड या व्हाट इज H प्लस प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट, एसिड है, बेस है, या और समथिंग मोर है, ठीक है, ठीक है।
it is a Lewis acid or it is an acid in the Lewis sense. ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH minus, ठीक है, ammonia and water are Lewis bases because they contain electron pairs available for sharing. ठीक है, आ रहा है समझ में? हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, अमोनिया, वाटर, ईथर, इथेनॉल, these all molecules are Lewis base because they are having electron pair for the donation. ठीक है, नेगेटिव आयंस भी है, एनायंस सब आ गए इसमें, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, साइनाइड माइनस. ठीक है, so Lewis theory does not differ from Bronsted theory with respect to substances called as base. Base की definition दोनों में तकरीबन सेम रहती. ठीक है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के कंसेप्ट के अंदर में क्या कहना है उसका? व्हाट इज बेस? यस, व्हाट इज एसिड? फर्स्ट चलिए, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के हिसाब से एसिड किसको कहेंगे? यस, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं. लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात नहीं करता है. It talks in the term of proton. ठीक है, प्रोटॉन, ओके, प्रोटॉन के रेफरेंस में बात करता है. उसका कहना है कि प्रोटॉन डोनर कौन है? एसिड. ठीक है, एसिड, एसिड इज प्रोटॉन डोनर, उसका कहना है. और बेस क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर. ठीक है, बेस क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर. ठीक है, acid donors, H plus donors are Lorry's acid, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के. और जो H plus एक्सेप्ट करता है वो बेस. ठीक है, तो a substance capable of donating an electron pair is capable of donating, substance which is capable of donating electron pair is Lewis base. ठीक है, it is also capable to donate an electron pair to proton. ठीक है, आ रहा है समझ में? दोनों बेस की डेफिनेशन तकरीबन एक ही हो रही है. जो लेविस बेस है वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड का भी बेस है. आ रहा है समझ में? क्योंकि बेस का, इसका लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में क्या कहना है कि बेस क्या करता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है. प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए काय की जरूरत है? लोन पेयर की. ठीक है, आ रहा है समझ में? प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए लोन पेयर की जरूरत है. आ रहा है समझ में? यस सर, तो इसलिए दोनों हिसाब से लेविस बेस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस दोनों बराबर है. ठीक है, ये वाटर है, वाटर के अंदर हम H प्लस ऐड कर रहे हैं, तो H प्लस को हम क्या बोल रहे हैं? एसिड है. ठीक है, HCl और H2O. जैसे आइए इधर देखते हैं, ये पीछे ही है वो, ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट है हमारा. ये वाटर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? बेस बोल रहे हैं. इसको एसिड बोल रहे हैं. ये H प्लस डोनेट कर रहा है, ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए बेस. ठीक है, तो व्हाट इज नीडेड टू एक्सेप्ट प्रोटॉन? प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर लोन पेयर की जरूरत है. ठीक है, अगर लोन पेयर नहीं है तो इट कैन नॉट एक्ट एज ए बेस एक्सेप्टर फॉर प्रोटॉन. ठीक है, सो बीइंग प्रोटॉन एक्सेप्टर इट इज ए ब्रॉन्स्टेड बेस. ठीक है, आ रहा है समझ में? Thus both definitions label the following species as base. दोनों के हिसाब से ये बेसिस, लोरे एंड ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के हिसाब से भी ये बेसिस ही. ठीक है, क्योंकि सब क्या करते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं. सब Br प्रोटॉन H प्लस एक्सेप्ट करता है, Cl माइनस एक्सेप्ट कर सकता है, H2O, OH माइनस, ये हमारा इथेनॉल, ईथर, अमोनिया. ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर, Yes. ओके. थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, इतना कुछ मुश्किल नहीं है. However, many species are there, लेकिन ये कंटेक्स्ट जो अप्लाई होता है, ये जो चीज अप्लाई है सिर्फ बेस के लिए है. लॉरी ब्रॉन्स्टेड के एसिड्स अलग है. ठीक है, उसके एसिड अलग है, बेस
दोनों के हिसाब से ये सब बेस है, ये जो चीज है, ठीक है। However, there are many species which are acid under Lewis definition but cannot be termed as according to according to Bronsted definition, ठीक है। बहुत सारे लेविस एसिड है लेकिन ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से वो एसिड नहीं है, ठीक है। A few examples are sulfur trioxide, halides of boron, aluminium and zinc. ठीक, ये देखिए एग्जांपल, SO3 है ये, ठीक है। दिस इज AlCl3, BX3, ZnX2, ठीक है। ये सब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ऑक्टेट जो होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहां पर भी नहीं है, AlCl3 में, BF3 के अंदर में भी नहीं है, और ये ZnCl2 इसमें भी नहीं है। इसलिए ये सब क्या हो गया, द सेंट्रल एटम इन ईच केस इज एबल टू एक्सेप्ट a pair of electron to complete its octet, ठीक है। ठीक है, ये सब लेविस एसिड हो गए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये क्या कर सकते, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? SO3 sir. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं ऑक्टेट, AlCl3, AlX3 यानी AlCl3 है, BX3 यानी BF3 एक ही है, ये ZnX2 मींस ZnCl2, ठीक है। ऑल दी थिंग्स आर देयर, ठीक है। सिमिलरली in a Bronsted acid like HCl, there is no vacant orbital to accept an electron to form a base. Bronsted acid जो HCl है, इसमें कोई vacant orbital नहीं है to accept an electron pair from base. Therefore, no obvious reason to label it as an acid according to Lewis definition, ठीक है। HCl को हम इसके हिसाब से, लेविस डेफिनेशन के हिसाब से एसिड नहीं बता सकते, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से ये क्या है, एसिड है। क्यों एसिड है लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से HCl? यस, हेलो, It donate proton. हाँ वेरी गुड, ये प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन ये डोनेट कर सकता है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम बेस से, ठीक है। इनके हिसाब से वैकेंट ऑर्बिटल ये सब है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स है, ठीक है। इसमें वैकेंट ऑर्बिटल, HCl में कहां वैकेंसी है, देयर इज नो एम्प्टी ऑर्बिटल टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेस से इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा, ठीक है। डोनेट करेगा तो, लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए जगह तो चाहिए, स्पेस तो होना उसको अकोमोडेट करने के लिए। देयरफॉर इसलिए ये लेविस डेफिनेशन के हिसाब से एसिड नहीं है। The definition includes reaction in which no ions may be formed. The Lewis definition includes ऐसे reactions in which no ions may be formed or there is no transference of proton or other ions. इसमें कौन से रिएक्शंस है जिसमें आयंस का ट्रांसफर नहीं होता, इन विच नो आयंस मे बी ट्रांसफॉर्म, और जिसमें आयन का फॉर्मेशन नहीं होता, और देयर इज नो ट्रांसफरेंस ऑफ प्रोटॉन्स और अदर आयंस, ठीक है। ट्रांसफर काय का होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन पेयर का। लेविस कॉन्सेप्ट में जो भी ट्रांसफर हो रहा है ओनली इलेक्ट्रॉन पेयर, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं है इसमें। कुछ एग्जांपल्स उसके, ये देखिए सिंपल एग्जांपल जो हमारा नोन एग्जांपल होता है, यहां से हम शुरुआत करते हैं। ये क्या है, R3N। R3N क्या है, यस, अमाइन। अमाइन के ऊपर कितने, नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं,